Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss DSSSB Metron 2024 एग्ज़ाम क्वेश्चन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 13 जुलाई यानी आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में रहने वाला है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। तो आपका कैप्टन मोहन सिंह, जो कि इसका राइट आंसर मोहन सिंह हो जाएगा। द इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय मोहन सिंह इन सिंगापुर। कैप्टन मोहन सिंह, एन इंडियन सोल्जर fighting on the behalf of British, was taken prisoner of the war by Japanese. He was pursued by a Japanese army officer to work with the Japanese for Indian independence. He was appointed the commander of the Indian National Army. सुभाष चंद्र बोस की बात कर ले। सुभाष चंद्र बोस joined the Indian National Army in 1943. One of his most famous declaration was "Give me blood and I will give you freedom." The INF played a vital role in the freedom struggle under the leadership of सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट है आपका हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आपका CGI, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 60 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी person acting a president or the president before entering upon the office takes an oath to discharge the function of the office. The oath also include an oath to protect, preserve, protect, defend and the constitution. In the sense the president takes an oath as the guardian of the Indian constitution, the oath is taken by the chief justice of India or in his absence by the senior most judge of the Supreme Court. चलिए नेक्स्ट है आपका द वुमेन रिजर्वेशन बिल इज नाउ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच एक्ट। तो आपका प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ गिवन हर एसेंट टू द वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑन 28 September 2023, मेकिंग इट्स ऑफिशियली नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन 116th Amendment Act. This constitutional amendment bill was passed by the Lok Sabha and Raj Sabha almost unanimously. तो आपका 116th Amendment Act, जो कि इसका हो जाएगा आंसर। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन 106th Amendment Act there is a provision to provide 33% reservation to women in the Lok Sabha and State Assembly. According to its provision, it shall come into force from such date as the central government may by notification in the official gazette determines. Prime Minister Narendra Modi has described this law as the Nari Shakti Vandan Act during a special session of Parliament earlier month. चलिए नेक्स्ट आपका हु बिल्ड दिल्ली हौज खास। तो आपका अलाउद्दीन खिलजी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द हौज खास कॉम्प्लेक्स इन हौज खास साउथ दिल्ली कंसिस्ट ऑफ वाटर टैंक, अ मदरसा, अ मॉस्क, अ mausoleum and pavilion built around an urbanized village whose medieval history dates back to the 13th century under the reign of Delhi Sultanate. It was part of the city India's second medieval city of the Delhi Sultanate of Alauddin Khilji dynasty. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु लॉन्च द हज सुविधा ऐप। तो आपका स्मृति ईरानी, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर मिनिस्ट्री अफेयर्स स्मृति ईरानी लॉन्च द हज सुविधा ऐप फॉर हज pilgrims at the event held in the Delhi. Along with this, Hajj Guide 2024 was also released. On the occasion, he said that various ministries of the NDA government have made continuous effort to make the Hajj pilgrimage smooth and convenient for the people. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु एबलाइज द प्रैक्टिस ऑफ सती इन इंडिया। तो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एबलाइज अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात कर ले, वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द ब्रिटिश फ्रॉम 1828 टू 1835। द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एबलाइज इन 1829। राम मोहन राय was known as the father of Bengal Resistance. He worked for improvement of the status of women in society. He worked against polygamy, child marriage, parda and sati pratha.
इट इज़ हीज वर्क विद एप्लाइज द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज आर्टिकल 32 रिलेटेड टू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। Article 32 of the Indian Constitution has been described as the heart and soul of Indian Constitution by Dr. V.R. Ambedkar. It provides a citizen the right to approach the Supreme Court in case of violation of any of his fundamental rights. It is also known as the right to constitutional remedies, right to move the Supreme Court for enforcement of writ petition. चलिए नेक्स्ट है आपका, डेक्कन प्लेट्यू इज इन विच स्टेट। तो आपका इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया विथ द एरिया ऑफ अबाउट 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर। इट इज स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र, तेलंगाना, नॉर्थ कर्नाटका एंड कथिवाड़ रीजन ऑफ गुजरात। तो जो भी आपका ऑप्शन में हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ वोल्केनिक प्लेट्यू फॉर्म आफ्टर द solidification of basaltic lava that flowed in the layer over the region, creating a stepped topography known as Deccan Traps. Over 8 Indian states extend over the Deccan Plateau. The Deccan Plateau covers most of the southern part of the country. It is located between the 3 mountain range and is spread over 8 Indian states. तो वो कौन कौन से हैं? तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु. It also includes parts of मध्य प्रदेश and the छत्तीसगढ़. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलगिरी तहर इज़ फाउंड इन। तो आपका तमिलनाडु जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी तहर इज़ अ गोट। द नीलगिरी इज़ a brown colored wild goat. The western Ghats, Nilgiris, Anomalis and Lilifatim are the habitat of Nilgiri Tar. The Nilgiri Tar is a state animal of Tamil Nadu. The Nilgiri Tar is also known as the Nilgiri Ilvesh. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच रिवर डज नॉट फ्लो इन महाराष्ट्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो जाएगा, तब तक तापी, गोदावरी, भीमा एंड कृष्णा आर द मेन रिवर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो जो भी ऑप्शन में आपका ये सब के अलावा दिया गया होगा तो वो राइट आंसर हो जाएगा। सोर्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट रिवर्स इन इंडिया की बात कर ले तो ब्रह्मपुत्र में आपका कैलाश मानसरोवर लेक जो कि लोकेटेड है। इंदस जो कि आपका कैलाश मानसरोवर लेक है। झेलम में आपका शेषनाग लेक। चेनाब में आपका वारला छा पास। रवि में आपका रोहतांग पास। सतलज रिवर में आपका माउंट कैलाश। गंगा में आपका गंगोत्री। नर्मदा में आपका मैकाल रेंज जो कि आपका है। चलिए नेक्स्ट है आपका, व्हेन इज़ द बिहू फेस्टिवल ऑफ असम सेलिब्रेटेड। तो बिहू इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट आसामीज फेस्टिवल इन द इंडियन स्टेट ऑफ असम। रोंगाली बोहाग बिहू इज़ द सेलिब्रेटेड इन अप्रैल। कोंगाली और काती बिहू सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर एंड भोगाली और माघ बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी। तो आपका ये है। बाकी देखिए इतने ही क्वेश्चन जो कि अभी तक मिल पाए हैं, बाकी और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उन्हें ऑल शिफ्ट की वीडियो में जो कि आपका डिस्कस कर देंगे। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। इसका पीडीएफ जो कि आपको दे दिया जाएगा हर शिफ्ट का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।